तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे। Good morning, everybody. Yes. Okay. So, welcome you all to day 14 of this English language training. Okay. So, welcome you all. Is my video voice clear? Type VC in comment box. Video voice clear. Video voice clear, guys. Yes, no. Okay. Good, good, good. Awesome. 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 Okay. Yes. So, let's begin the day 14 of English language. Okay. So let me share the story with you first of all. Okay, how many people love to listen stories? How many people love to listen story? How many people love to listen story? Okay, good, 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 good. Awesome. Yes, good. So before starting today's session, just I request all the volunteers kindly put in the group that session has started. Kindly put in the group that session has started. So people should join. Okay. Yes. Kindly put in the group. Good. Yes, let's begin. So, here we go. The story is about this class, okay? About this 30 days class. How many people want to know that how this class has started? How this class has started? Okay, good. So, the story behind this class, okay, I'm going to share the story behind this class, okay? How this class has started, how this idea has come in my mind, okay, and how we have implemented this idea, okay. So definitely this story, this idea, or this whatever I'm sharing with you right now, that will help you in future, okay, definitely. So let me start, let me begin. So one day I was just thinking about uh, you know that I should start teaching English. Okay, I was just thinking about it, and I thought like how I should start teaching English, how I should start it. And then I thought I already have different programs, okay, different kind of programs. I already done different kind of programs, like video making, video editing, poster making, and so on, okay, life mastery program and all. So I thought I have a large medium, I have a huge medium, which is online medium. So why should not I'm taking benefit of that, okay. And then I thought like चलो शुरू करते हैं, है ना. Let's start online, so I made one picture, I made one image, I made one poster in Canva, okay. I made one poster in Canva, and just I thought like we will run this program for next 30 days, and how we will get people for that program. That is the big deal, right? Because once you start, you need people, right? कोई भी चीज अगर आप करते हो, you need support, you need people for that, right? So then I got question like how I will get people for this program. So then I thought I should make it free. Okay, I should make it free. But again, the question came in my mind. That is what if I make it free?
So, will people value it or no? Will people value it? Then I got answer that people will not value it. Okay, people will not take it seriously. So what should I do? Then I thought, like, we will have donation for this program, right? Whatever people will pay, whatever they wish they can pay. Okay, so what will happen? People will have seriousness about this, right? They will pay something, right? 50 rupees, 100 rupees, 20 rupees, whatever, 1000 rupees, 500 rupees, 300 rupees, whatever they. But once they pay, they will have seriousness about it. And the second thing, if we do it for donation, then that donation goes to some organization or some orphanage home or whatever, जहां पर भी वो donation जाएगा, so they will get benefited from it, right? And ultimately what happened, people will donate for you know some good cause, some good cause. कुछ अच्छे काम के लिए लोग डोनेट करेंगे, वैसे तो नहीं करते हम ऑब्वियसली। हम मंदिर में 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए भी कभी कभी डाल देंगे मंदिर में। ओके, बट मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठा होता है, उसे हम 2 रुपए भी नहीं देते कभी कभी, और देते हैं तो 2 रुपए देते हैं या फिर 1 रुपया देते हैं। एक्चुअल नीड कहाँ पे है? मंदिर में है या मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी को है? कैन समबडी आंसर मी? एक्चुअल नीड कहाँ पे है? बाहर है या अंदर है? कैन समबडी आंसर मी? आर यू गेटिंग माई थिंग्स गाइज? ओके, बाहर है। ओके, सो इट डजेंट मीन, आई एम नॉट सेइंग दैट आप हर एक भिखारी को हेल्प करो। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेट मी क्लियर। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप हर भिखारी को हेल्प करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर भिखारी को हेल्प करो, बिकॉज हर भिखारी जरूरतमंद नहीं होता। हर भिखारी जरूरतमंद नहीं होता। शायद हम किसी ऐसे भिखारी को हेल्प करेंगे कि जो खुद मेहनत करके कमा सकता है, जो खुद मेहनत करके कमा सकता है। सो हम भिखारियों की संख्या बढ़ाएंगे। सो हम क्या करेंगे? भिखारियों की संख्या बढ़ाएंगे। तब हमें उस वक्त पे ये देखना जरूरी है कि जो आपके सामने है, इज ही एक्चुअली नीडी पर्सन? इज ही एक्चुअली नीडी पर्सन? वो देखना हमें जरूरी है। ओके, यहाँ पे कुछ इन्होंने लिखा है, शशांक जोशी ने, इट्स डिपेंड ऑन द थॉट प्रोसेस। हाँ, जरूरत अंदर है या बाहर है, इट्स डिपेंड ऑन द थॉट प्रोसेस। गुड, ठीक है। यस, दैट्स ऑल्सो राइट आंसर। ओके, यू आर ऑल्सो करेक्ट, because every person has different perspective about life. Okay, every person has a different perspective. I have a different perspective, may you have a different perspective about it. Okay, but the thing is, when we are aware about that, like कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है, the orphanage home I am talking about, there are 53, 54 child who all are HIV पॉजिटिव। ओके, जिस ऑर्फनेज होम की बात मैं करता हूँ या मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे 53, 54 ऑर्फनेज, यानी 54, 53 चिल्ड्रन है जो कि HIV पॉजिटिव है। उन्हें पेरेंट्स नहीं है। ओके, उनके पेरेंट्स ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुके हैं। एंड उनके केयर टेकर एक संस्था है जो उनका केयर टेकर उनको करती है। एवरी मंथ आई डोनेट देयर समथिंग। ओके, एंड बिफोर 3-4 years आई हैव जॉइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन। जॉइन मीन्स मैं उनसे उनके साथ जुड़ा हूँ। जुड़ा मतलब ऑफिशियली नहीं जुड़ा हूँ मैं, बस मैं वहाँ पे जाता हूँ। दे ऑल नो मी। ओके, सो
वहाँ पे मैं डोनेट करता हूँ, उनको मैं डोनेट करता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे फिजिकल डोनेशन भी मैंने किया है। फिजिकल डोनेशन मीन्स वहाँ पे जाके कुछ एक्टिविटी करना, उनको कुछ सिखाना वगैरह वगैरह। एंड देन आई व्हेन आई शिफ्टेड टू पुणे, बिकॉज वो उधर अकोला में है वो संस्था। ओके, व्हेन आई शिफ्टेड टू पुणे, फ्रॉम दैट टाइम आई एम डोनेटिंग इन, मीन्स लाइक मैं यहाँ से कुछ उनको डोनेट कर देता हूँ। ओके, सो आई थॉट कि वहां पे अगर मैं डोनेट कर रहा हूँ तो मेरा जो डोनेशन है, मेरा जो पैसा है वो सही जगह पे जा रहा है। ओके, आई थॉट दैट, एंड दिस इज ऑल द स्टोरी बिहाइंड दिस क्लास has started. And today I'm really happy. I hope you all also very very happy about it. We have already completed 14 days. It's not a joke, guys. We have completed 14 days of this class. How many people are feeling awesome? Just type me in comment box. How many people are feeling awesome? Oh my god. 14 days. Wow. You know how many people got wow moment? Wow. We have completed 14 days. Great. And same like this, we are going to complete 30 days also, and we are going to complete history. Okay, and one more thing, one more news I have. Okay, after completing these 30 days, definitely I share with you, because we have people from all over Maharashtra, right? We have people from all over Maharashtra. uh, Out of Maharashtra also some people are from Delhi. They are also joining us. We are planning something which will, you know, which will connect you and me, which will connect you and me directly. Okay, we are planning that. I will share with you, don't worry. Okay, so soon I will share with you, जहाँ पे आपकी और मेरी डायरेक्टली मुलाकात होगी, फेस टू फेस. Okay, so we are planning such kind of activity, and definitely will come to you, will meet you. Definitely we are planning for that. So this is what is the story behind this class, and this is how this start class has started. एंड देन आई थॉट लाइक कि चलो इस जो क्लास हम शुरू करें उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, एंड देन वो रिकॉर्डिंग हम मेरा जो कोर्सेस है उसमें, वो कोर्सेस में वो रिकॉर्डिंग ऐड कर देंगे. देन लोग मेरे ऑलरेडी मेरे कोर्स में है, दे विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, उनको एक कोर्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा. ओके, और जो लोग रोज यहाँ पे आते हैं, रोज यहाँ पे सीखते हैं, उनको भी रिकॉर्डिंग देते हैं. देन नंबर ऑफ थिंग्स केम इन माय माइंड. ओके, एक बार किसी एक चीज की आप शुरुआत करते हो, इफ यू हैव अ प्योर इंटेंशन बिहाइंड इट, इफ यू हैव अ प्योर इंटेंशन बिहाइंड इट, डेफिनेटली हजारों चीजें उसके साथ आपके पास आती है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज माय टुडेज you know message for you. If you are doing something, do it very do it with very 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 pure heart. Okay, and plan something. First of all, you have to think about people. When you think about people, definitely you will get results. Okay, so how many people got this, whatever I'm saying? How many people got this? Okay, oh my god, I got it. Just type GT in comment box. Just type GT. Got it? Got it, guys? Whatever you are doing, first of all, think about why you are doing that and for whom you are doing that. That's all. Few you know young people also with us, like Asmi, and 2 3 young people, we Pajpur, है ना? शी इज ऑल्सो. ये कुछ बच्चे हमारे साथ है, और ये बच्चे कल का भविष्य है. ओके, सो इफ यू आर गेटिंग, इफ दे आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ थॉट्स राइट नाउ टुडे, सो वो अगर इस थॉट पे, इस विचार पे अगर वो काम करेंगे, सो डेफिनेटली आने वाला उनका जो कल है वो बहुत बेहतरीन होगा. आई होप, राइट? आई होप वो बहुत बेहतरीन होगा, है ना? बहुत से बड़े लोग भी हमारे साथ है, जैसे कि चिटनीस सर है, और भी बहुत सारे लोग हैं, विद्या मैडम है. यू नो दिस पीपल आर, ये हमारे फैमिली के रिस्पेक्टेड लोग हैं. ओके, सो जो छोटे लोग हैं उनके लिए भी बहुत, कालिदास जी है, ही इज ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन फॉर अस. ओके, सो बड़े लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं. जोशी जी भी है, शशांक जोशी जी.
है ना। बाकी जितने लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, ओके, पर्सनली बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ, बिकॉज आपके वीडियोस मैंने देखे, सो मैं आपको थोड़ा बहुत मैंने जाना, बिकॉज आपका चेहरा मैंने देखा, राइट। सो यहाँ पे मैं आपका चेहरा रोज नहीं देखता हूँ, सो दैट इज द रीजन आई आस्क यू टू मेक वन वीडियो एटलीस्ट, सो दैट आई कैन सी यू, ओके, okay, I can understand who you are, right? So how many people will make video today? जितने लोगों का वीडियो बनाना बाकी है, kindly make one video, one small video about you. Just just explain in that video about you, okay. My name is Sagar Garve, like this. My name is Sagar Garve and I am doing this whatever आप जो भी करते हो, आई बिलोंग्स टू दिस सिटी, इस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, आई एम फ्रॉम, ऐसा भी बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम नासिक, आई एम फ्रॉम जलगांव, आई एम फ्रॉम धुले, आई एम फ्रॉम सांगली, आई एम फ्रॉम सोलापुर, वॉट एवर, ओके। एंड आई हैव ज्वाइन दिस क्लास, मैंने ये क्लास इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं कुछ अच्छा थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल सकूं, थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज जो है इंग्लिश के प्रति वो इम्प्रूव हो, दैट्स ऑल। इतना बोलना है आपको। और ये एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, 30 to 40 सेकंड का, 50 सेकंड का वीडियो होगा, नॉट मोर देन दैट, ओके। इसका फायदा ये होगा कि मेरी और आपकी दोनों की पहचान होंगी, राइट। नंबर ऑफ पीपल, आई जस्ट अवेयर अबाउट योर नेम्स बट नॉट, आई हैवंट सीन यू, राइट। सो हाउ मेनी, यस, आज बनाएंगे वीडियो फिर वैशाली जी, ओके। और हाउ मेनी पीपल विल मेक वीडियो टुडे? आई टाइप, आई इन कमेंट बॉक्स, आई, okay, type I in comment box. Ashmi, you have made already. Chitra, Smita ji, Jay Shri Gunda, Vishal Rathod, you are very excellent in making video, Vishal. Why you are not, why you have not made video till that? Gauri, Nitesh Pawar, good. Nitesh ji, I think आप वन डे के हमारे वीडियो सेशन में थे, राइट? नितेश जी, वन डे वीडियो सेशन में थे शायद आप हमारे। महेंद्र सिंह पाटिल, महेंद्र सिंह पाटिल, यस, वी आर वेटिंग टू सी यू महेंद्र जी, यस। देखो मुझे याद रहता है कौन कहाँ पे है, राइट। यस, थैंक यू नितेश, यस। सो इट मीन्स मुझे याद रहता है हर एक बंदे का, ओके, गुड। सो लेट्स मूव, ऋतुजा, यस, ऋतुजा जी आप भी बनाइए वीडियो आज, ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लर्निंग, ओके। सो आर यू ऑल एक्साइटेड गाइज? एक्साइटेड फॉर टुडेज लर्निंग, ओके। सो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रामर, बिकॉज 2 दिन से हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, 3 दिन हो गए आई थिंक, 2-3 दिन से। I thought yesterday that you got bored about grammar. So let's shift to another thing, and then again we'll shift tomorrow to grammar. Okay, okay. आज थोड़ा एक अलग चीज करते हैं, and then again we'll shift to grammar. And one more thing which I want to share with you. कल क्लास को आते समय अच्छे कपड़े पहनकर आना। कल क्लास को आते समय अच्छे कपड़े पहनकर आना, बिकॉज कल हम सबके वीडियोज ऑन करेंगे, आपको एक सेपरेट रूम में डालेंगे जहां पर आप एक दूसरे से बात करेंगे, ओके। आई विल क्रिएट अ रूम, है ना। जूम में एक रूम का फीचर है, आपको पता है? हाउ मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट जूम रूम फीचर? नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो आई विल शेयर टुमारो, एंड आपको एक रूम में डाला जाएगा जहाँ पे आप और आपके साथ 1-2 लोग होंगे, 1 या 2 लोग होंगे आपके साथ, और आपको उनसे बात करना है, okay. You have to communicate with him or her in English, okay. आपको खुद का नाम बताना है, उनका इंट्रोडक्शन देना है। सो टुमारो, सो आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा उसके लिए, बिकॉज अगर आपको दूसरे से इंट्रोडक्शन करना है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वीडियो ऑन करें। एंड अगर आपको वीडियो ऑन करना है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ठीक ठाक हो, राइट, सही सही आप हो। सो दैट इज द रीजन कल आते वक्त आपको एकदम परफेक्टली आना है, ओके। कपड़े अच्छे पहन के आना है, अच्छे से ग्रूमिंग करके आना है, ओके, टुमारो। सो कल का सेशन शायद हम थोड़ा एक 5-10 मिनट लेट भी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज आप सभी लोगों को रेडी होना पड़ेगा वगैरह। सो एक 5 मिनट्स, 5 या 10 मिनट्स वॉट एवर, 7:05 या 7:10 को हम सेशन स्टार्ट करेंगे। 7:05 को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन स्टार्ट ऑन शार्प 7 o'clock ऑल्सो, इफ यू ऑल आर रेडी, ओके।
Yes, let's move. Let's learn today. What we are going to learn today? Today we are going to cover about hospital uh, c- conversation. Okay, hospital conversation and hotel conversation and restaurant conversation. Okay, so few sentences I am going to share with you today. Just just observe those sentences. Just a minute. Yes, full screen. Okay, full screen. Okay, so I'll just switch off my video if you need. Okay, so today we are going to learn about hospital conversation. Okay, अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, अगर आप किसी हॉस्पिटल में अगर जा रहे हो, सो हाउ यू विल कम्युनिकेट ओवर देयर. ओके, हाउ यू विल कम्युनिकेट ओवर देयर. I will share with you few sentences. You have to, if you want, you can write, or you will get notes of this all sentences. Okay, so let's move. Let's start. Okay. Yes. So first, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, सो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ओके, कैसे शुरुआत करेंगे आप अपने कम्युनिकेशन की? कैसे आप, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज एक्सक्यूज मी सिस्टर, वेयर इज आईसीयू. अगर आपको ये पूछना है कि आईसीयू कहाँ पर है. ओके, आज जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में शायद कई बार हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है या पड़ा होगा. सो इफ यू वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, देन हाउ यू विल कम्युनिकेट? यू विल स्टार्ट. इफ यू वांट टू आस्क वेयर इज द आईसीयू, आपको अगर पूछना है कि आईसीयू कहाँ पर है, सो यू शुड आस्क लाइक दिस: एक्सक्यूज मी सिस्टर, एक्सक्यूज मी सिस्टर, वेयर इज आईसीयू? Excuse me, sister, where is ICU? See the modulation, voice modulation. Okay, try to understand this. See the voice modulation also. Okay, may you are aware about these sentences. हो सकता है कि आपको ये sentences पता हो, but आपको सीखना क्या है आज? आपको ये सीखना है कि वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है. ओके. ओके, why I am telling all the time कि आप वीडियो बनाओ और वीडियो पे प्रैक्टिस करो, because once you practice with your videos you will get more clarity. राइट, आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, नाउ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड आई एम स्पीकिंग इन डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस. समटाइम्स मेरा आवाज बढ़ता है, समटाइम्स कम होता है. सो ये जो प्रैक्टिस है, ये आपको अगर करना है, इफ यू डोंट हैव समवन विथ whom you can speak or with whom you can practice, so best friend you have, best friend, द कैमरा. ओके, कैमरा शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड. पहले के दिनों में बुक हमारे अच्छे फ्रेंड होते थे, अभी भी है, नो प्रॉब्लम. बुक जो किताबें हैं वो हमारे अच्छे दोस्त होते थे. आज हमारा एक दोस्त और बढ़ चुका है, और वो दोस्त कौन है पता है आपको? वो दोस्त है आपके मोबाइल का कैमरा. यू कैन शूट योर वीडियोज बाय योर कैमरा, यू कैन प्रैक्टिस विद योर कैमरा. ओके, कितने लोगों को ऐसा लगता है? ओके, हाउ मेनी पीपल गॉट दिस, हाउ मेनी पीपल गॉट दिस, लाइक कि पहला जो हमारा फ्रेंड था वो है बुक, और दूसरा हमारा फ्रेंड है कैमरा. ओके, गॉट इट गाइस? गुड, गुड. यस, थैंक यू आरती जी, रमेश जी, विशाल राठौड़. गुड. लेट्स मूव, लेट्स मूव. सो फर्स्ट सेंटेंस, एक्सक्यूज मी सिस्टर, वेयर इज आईसीयू? आईसीयू कहाँ पर है? एक्सक्यूज मी सिस्टर, वेयर इज आईसीयू? आईसीयू कहाँ पर है? ओके. May I know where is room number 16? May I know where is room number 16? क्या मैं जान सकता हूँ where is room number 16? रूम नंबर 16 कहाँ पे है? May I know where is room number 16? Now here you have to understand. हमने यहाँ पे may यूज किया है. जैसे कि कल हमने may सीखा था, may हमने यहाँ पे यूज किया है. may हमने क्यों यूज किया है? बिकॉज हमें मोर पोलाइट रहना है, यहाँ पे ज्यादा पोलाइटनेस हमें यहाँ पे दिखानी है, बिकॉज वी आर इन हॉस्पिटल. तो हम वहां पे जोर से बात नहीं कर सकते. सो वी हैव टू बी पोलाइट एट हॉस्पिटल, राइट? हमें हॉस्पिटल में क्या करना है? पोलाइट रहना है. सो दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग मे आई नो वेयर इज रूम नंबर 16? क्या मैं जान सकता हूँ कि रूम नंबर 16 कहाँ पर है? ओके. हाउ लॉन्ग विल ही हैव टू स्टे हियर? ओके, हाउ लॉन्ग विल ही हैव टू स्टे हियर? इन्हें या इसे यहाँ पर यानी हॉस्पिटल में कितना टाइम रुकना पड़ेगा? अगर आपने किसी को एडमिट किया है, ओके,
आपने आपके फ्रेंड को एडमिट किया है या किसी को भी एडमिट किया है, सो आप डॉक्टर को पूछते हैं ना कि सर, डॉक्टर, इनको यहाँ पे कितने दिन रखना रखना पड़ेगा? ओके, इनको यहाँ पे कितने दिन रखना पड़ेगा? सो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल ही हैव टू स्टे हियर? ओके, इसे यहाँ पर कितने दिन रखना पड़ेगा या रहना पड़ेगा? ओके, अगर यू नो लड़का है सो ही, अगर लड़की है तो शी। ओके, लड़का है तो ही, लड़का है लड़की है तो शी। हाँ, वन मोर थिंग विच दैट आई वांट टू शेयर विथ यू, शायद बहुत से लोगों का ये कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, दैट इज द रीजन मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कल मैंने एक अच्छे से, बहुत अच्छा ट्रेनर है, ओके, ही इज फ्रॉम पुणे, एक अच्छा ट्रेनर है, ही इज फ्रॉम पुणे, उसका एक लेक्चर मैंने अटेंड किया, और एक छोटी सी गलती उन्होंने की, वो एक्चुअली वो गलती पकड़ी नहीं जा सकती मगर वो गलती है। ओके, देखिए, मराठी में या हिंदी में हम कैसे कहते हैं, मैक्सिमम मराठी में हम कैसे कहते हैं, अगर हमें लड़का कहना है तो हम क्या कहते हैं? ओके, ही। ओके, इंग्लिश में ही बोलते हैं हम उसे। ओके, वह बोलते हैं, हिंदी में वह बोलते हैं। ओके, और हिंदी में इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन मराठी में फर्क पड़ता है। मराठी में क्या बोलते हैं हम? तो। ओके, आणि इफ अगर दैट पर्सन इज रिस्पेक्टेड तो हम क्या बोलते हैं? ते। ओके, और वही इंग्लिश में अगर हम उसे ट्रांसलेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ही का होता है, ते का, तोचा, तो जो वर्ड आहे तो, ओके, तो मुलगा, सो ही। ओके, और अगर तो रिस्पेक्टेड कोई है तो हम बोलते हैं ते, तो उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं? दे, राइट? तो हमें क्या लगता है? यस यस, दे प्लूरल है, हाँ, राइट। तो उसमें क्या होता है, हमें क्या लगता है कि हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे फादर है तो हम क्या मराठी में क्या बोलते हैं? ते माझे बाबा है। ओके, सो वो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करता है बंदा? दे, है ना, दे आर माय फादर, ऐसा बोलता है कभी कभी, राइट? ऐसे ट्रांसलेट करता है, बट इट इज राइट, इट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर हमें ये बोलना है कि ते माझे बाबा है, सो हाउ यू विल से, कोई मुझे बताएगा? ही इज, एब्सोल्युटली ही इज। हम किसी भी मेल, जो मेल है उसके लिए क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे, ही इज माय फादर, शी इज माय मदर, राइट? एंड इफ द ग्रुप ऑफ पीपल लाइक एक दो तीन लोग हैं, सो दैट टाइम यू शुड यूज दे। ये भी आपको ये क्लियर है क्या? सबको, सब लोगों को क्लियर है? बिकॉज मुझे ताज्जुब हुआ कल वो देख के, ये देख के, ये बात सुन के मुझे ताज्जुब हुआ कि इतने अच्छी लेवल का ट्रेनर है एंड ही ऑल्सो यूज दे। सो आई गॉट सरप्राइज, ओ माई गॉड। सो दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग विथ यू। याद रखो, कोई भी लड़का है सो यूज ही, लड़की है सो यूज शी। ओके, लड़का लड़की या फिर जेंडर, मेल जेंडर है सो ही, फीमेल जेंडर है तो शी। ओके, यस, भले ही आप इंग्लिश में सब रिस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं होता। ओके, सो आपने सुना होगा, आपने अगर हॉलीवुड की फिल्में देखी है, इफ यू हैव सीन हॉलीवुड फिल्म्स, सो वहां पे एक चीज देखी होगी आपने कि आई वॉज, मैं मेरी भी बात बताता हूँ आपको। आई वॉज वर्किंग इन इंटरनेशनल कंपनी, वन इंटरनेशनल कंपनी बिफोर 2 years आई वॉज वर्किंग विथ वन इंटरनेशनल कंपनी। वहां पे सर वगैरह नहीं बोलता कोई आपको। ओके, नो वन विल से यू सर। ये इंडिया में ये कल्चर है सर का। ओके, ये जो सर वाला कल्चर है ये सिर्फ इंडिया में है। वहां पे डायरेक्टली नाम से बुलाते हैं, कितना भी, कितने भी बड़े हो आप। ओके, कितने भी बड़े हो, दे विल डायरेक्टली, यू नो दैट पीपल, दे पीपल विल कॉल यू डायरेक्टली बाय योर नेम, आप कितने भी बड़े हो। ओके, सो ये जो रिस्पेक्ट वाला और ये जो सर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते वो इंसान की, ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये रिस्पेक्ट वाला जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे है, इंडिया में है। सर बुलाते हैं हम, है ना, हम हमारे जो भी रिस्पेक्टेबल पर्सन होंगे। वहाँ पे ऐसे नहीं, वहाँ पे कितना भी, कोई भी कितना बड़ा रहे तो वो डायरेक्ट, अभी जैसे कि जोशी जी है हमारे साथ, शशांक जोशी, सो वो मुझसे बड़े हैं उम्र में, ठीक है, सो डायरेक्टली उन्हें मैं बोलूंगा, हाय शशांक, हाउ आर यू? ओके,
और वो भी कुछ फील नहीं करते उस चीज का, राइट? सो वो डायरेक्टली नाम से बुलाते हैं। ये फॉरेन कल्चर है, ओके। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। हाँ, आपको पता होगा शायद, नहीं पता होगा तो इसलिए मुझे याद आई, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सो हियर सेंटेंस क्या है, हाउ लॉन्ग ही विल हैव टू स्टे हियर, कितने दिन इसे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, है ना। अगर लड़का है सो ही, मेल मेल जेंडर है तो ही, फीमेल जेंडर है तो शी, ओके। वेयर इज द इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड कहाँ पे है? वेयर इज द ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर कहाँ पे है? वेयर इज द इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड कहाँ पे है? वेयर इज द रेस्ट रूम, रेस्ट रूम कहाँ पे है? वेयर इज द रेस्ट रूम, रेस्ट रूम कहाँ पे है? ओके। वेयर इज द मेडिकल, मेडिकल कहाँ पे है? वेयर इज द वेयर आई कैन गेट मेडिसिन, मैं मेडिसिन मुझे कहाँ से मिल सकती है, राइट। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे ऐड नहीं है, वो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ऑन विच डेज द चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट कम, ऑन विच डेज चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट कम, यानी जो बच्चों के जो डॉक्टर है, छोटे बच्चों के जो डॉक्टर है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, वो किस दिन आते हैं, है ना, वो किस दिन आते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो सेंटेंस, ऑन विच डेज लिखा है, यहाँ पे एस लगाया है, डेज, ऑन विच डेज चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट कम। कोई मुझे बता सकता है कि ये डेज की जगह पे हमने डे क्यों नहीं लिखा, ऑन विच डे चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट कम, ऐसा क्यों नहीं लिखा हमने? हमने लिखा है डेज। हमें बोलना ये है एक्चुअली कि कौन से दिन, यानी कौन से दिन, ये बोलना है हमें, है ना, कौन से दिन, ओके, वो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट जो है वो आते हैं। दैट इज द रीजन वी यूज हाउ मेनी डेज, यस, यानी कितने फिक्स डेज, कितने डेज है, कितने डेज वो आते हैं, वीकली कितने दिन आते हैं वो, मंडे ट्यूसडे आते हैं या फिर फ्राइडे सैटरडे आते हैं, है ना। दैट इज द रीजन वी यूज यस, ओके, यस, यस। नेक्स्ट, व्हाट, सॉरी, आई वांट टू एडमिट माय ब्रदर इन हॉस्पिटल, मैं अपने भाई को इस हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहता हूँ। आई वांट टू एडमिट माय ब्रदर इन हॉस्पिटल, आई वांट टू एडमिट माय ब्रदर इन हॉस्पिटल, ओके। वेयर विल आई गेट मेडिसिन, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया, वेयर आई विल गेट मेडिसिन, वेयर विल आई गेट मेडिसिन, ओके, वेयर विल आई गेट मेडिसिन, ओके, वेयर विल आई गेट मेडिसिन। नेक्स्ट, yes, next, what are the visiting hours, what are the visiting hours, visiting hour क्या है, कौन से दिन में, कौन किस दिन और कितने घंटे, यानी कौन से टाइम में वो आते हैं, है ना, टाइम क्या है उनका। व्हाट आर द विजिटिंग आवर्स, विजिटिंग आवर्स कौन से है। इसको, ये जो आर्स है, इसको आर्स बोलने की आदत डालो, ओके, बहुत सी बार, बिकॉज हमारे मराठी लैंग्वेज इन्फ्लुएंस है ना, मदर टंग इन्फ्लुएंस बोलते हैं उसे हम, मदर टंग इन्फ्लुएंस, MTI। हम जब भी बात करते हैं हमारे इंग्लिश में, हमारे हिंदी में मदर टंग इन्फ्लुएंस आता है, ओके। समटाइम्स आपको ऐसा लगता होगा शायद, मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से, आपको लगता है कि नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। मैं जब बात करता हूँ हिंदी में तो क्या आपको ऐसा लगता है दैट आई एम फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड, क्या आपको ऐसा लगता है? लगता है तो मुझे बोलो, बिकॉज आई आई विल इम्प्रूव। क्या लगता है आपको? लगता है, गुड, चित्रा जी, यस। और किसको लगता है जब मैं बात करता हूँ हिंदी में, सो आपको ऐसा लगता है कि ही दिस पर्सन इज फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड, लगता है, ओके, गुड, ओके। कुछ लोगों को नहीं लगता है, गुड, गुड, ओके, यस, 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 ओके, यस, नो, ओके। सो एक्चुअली वो लगना नहीं चाहिए, एक्चुअली वो लगना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर लगता है, अगर लगता है, सो इट मीन्स मेरी लैंग्वेज में मैं जो बोलता हूँ उस बोलने में मदर टंग इन्फ्लुएंस है, यानी जो मेरा मदर टंग है उसका इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मत मतलब वहां पे उसका इन्फ्लुएंस, वी कैन से, क्या बोलेंगे हम इन्फ्लुएंस को, प्रभाव है उसका, राइट। वैसे ही जब हम इंग्लिश में बोलते हैं, सो आपने देखा होगा, जो गुजराती लोग हैं, गुजराती पीपल, वो कहते हैं हॉल, है ना, हॉल, HALL, हॉल, HALL, हॉल, हॉल को वो क्या बोलते हैं? हॉल। हमने हॉल बुक किया है शादी के लिए, ऐसा बोलते हैं, हॉल बुक किया है हमने शादी के लिए, क्योंकि उनका मदर टंग इन्फ्लुएंस है,
एक्चुअली वो बोलना चाहते हैं हॉल, HALL, हॉल, बट वो बोलते क्या है, होल, राइट। सो ये मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है। उसे रिमूव करने के लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके। वो 1 डे 2 डे 3 डे में नहीं होता, ओके। सो आर जो है, HOURS, ये हम बचपन से बोलते आए हैं, इसे आर, आर्स, आर्स, आवर्स, आवर्स ऐसे बोलते आए हैं हम। तो इसे हमें सीखना पड़ेगा, आर्स 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 बोलना शुरू करना पड़ेगा, राइट। डॉक्टर, एनी इंस्ट्रक्शन अबाउट डाइट? डॉक्टर, क्या कोई इंस्ट्रक्शन है डाइट के बारे में? डॉक्टर, एनी इंस्ट्रक्शन अबाउट डाइट? डॉक्टर, जब भी आप हॉस्पिटल में होते हो, डॉक्टर बोलते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, हल्का खाना खाओ, वरन भात खाओ, है ना, दाल खिचड़ी खाओ, ऐसा वैसा, ओके। सो डॉक्टर, एनी इंस्ट्रक्शन अबाउट डाइट? डॉक्टर, क्या कोई इंस्ट्रक्शन है डाइट के बारे में? ये भी आप पूछ सकते हो, डॉक्टर, एनी इंस्ट्रक्शन अबाउट डाइट? एंड एक चीज याद रखो दोस्तों, एक चीज याद रखो, देखो बोलते बोलते मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताता हूँ, है ना, वो भी आप लिख लिया करो साइड में। ये मुझे जैसी याद आती है मैं वैसे आपको बोलता रहता हूँ। एक चीज याद रखो, कभी भी अगर हॉस्पिटल में जाओ, डोंट से डोंट से सर और मैडम टू डॉक्टर, डोंट से सर और मैडम टू डॉक्टर। डॉक्टर जो है उसे डॉक्टर कहो, डॉक्टर। ही विल फील प्राउड अबाउट इट, बिकॉज उसने 6 साल 7 साल 10 साल मेहनत करके उस डिग्री को हासिल किया है, राइट। सो उसे क्या कहो, उसे डॉक्टर कहो। देखो, वो अलग रिस्पॉन्ड करेगा आपको, करके देखो ये चीज। बिकॉज I was working in pharma company. I worked in pharma company for more than 5 years. 5 साल से भी ज्यादा मैंने फार्मा कंपनी में काम किया है। एंड when we say doctor to him, he will feel proud. Oh my God, मैं यानी उसे याद आता है कि यस मैं डॉक्टर हूँ। बिकॉज सर उसे दिन में 100 लोग उसे सर बोलते हैं, दिन में सर 100 लोग उन्हें सर या मैडम बोलते हैं। So we should think differently. We should act differently, right? How many people are agree with me? Just type AG in comment box. How many people are agree with me? Right? So नेक्स्ट टाइम जब भी हॉस्पिटल में जाओ, क्या कहोगे? नेक्स्ट टाइम जब भी डॉक्टर में सॉरी हॉस्पिटल में जाओगे, क्या कहोगे? डॉक्टर, ओके। क्या कहोगे? डॉक्टर, ओके। सो यहाँ पे वही सेंटेंस, दैट इज द रीजन मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे। डॉक्टर, एनी इंस्ट्रक्शन अबाउट डाइट? डॉक्टर, एनी इंस्ट्रक्शन अबाउट डाइट? डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, राइट। सो कोई इंस्ट्रक्शन है क्या डाइट के बारे में? ओके, कोई इंस्ट्रक्शन है क्या डाइट के बारे में? एनी इंस्ट्रक्शन अबाउट डाइट? डॉक्टर, एनी इंस्ट्रक्शन अबाउट डाइट? नेक्स्ट, आई हैव बीन हियर टू सी मिस्टर पाटिल। यस यस, Vidya Rane madam, she's with us and she's already belongs to doctor background. Okay, so unko रोज every single day she's meeting to doctors. Okay, so she's from pathology background actually. Okay, so वो डॉक्टर के ही जैसे डॉक्टर ही है हमारे लिए तो, ओके। सो यस, आई हैव बीन हियर टू सी मिस्टर पाटिल। मैं यहाँ पे पाटिल, मिस्टर पाटिल जो है उन्हें देखने आया हूँ। आया हूँ या आई हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, ओके। साउंड म्यूट हो गया है, मुझे तो आ रहा है। आपके मोबाइल में देखिए आरती जादव, आपका मोबाइल का साउंड म्यूट हुआ होगा। जस्ट चेक योर मोबाइल, चेक विथ योर मोबाइल, ओके। यस, आई हैव बीन हियर टू सी मिस्टर पाटिल। मैं यहाँ पे मिस्टर पाटिल इनसे मिलने आया हूँ। आई हैव बीन हियर टू सी मिस्टर पाटिल। मैं मिस्टर पाटिल को यहाँ पे मिलने आया हूँ। मिस्टर पाटिल वॉज एडमिटेड हियर 3 days अगो। एगो बोलते हैं बहुत लोग, एगो। मिस्टर पाटिल वॉज एडमिटेड हियर 3 days अगो। 3 दिन पहले मिस्टर पाटिल को यहाँ पे एडमिट किया गया है ना। 3 दिन पहले मिस्टर पाटिल को यहाँ पे एडमिट किया गया है, ओके। सो मैं उनसे मिलने आया हूँ, ऐसे बात करोगे आप। मिस्टर पाटिल वॉज एडमिटेड हियर 3 days अगो एंड आई एम हियर टू मीट हिम। आई एम हियर टू मीट हिम। आई हैव बीन हियर टू सी मिस्टर पाटिल, ओके। गेटिंग द थिंग्स? yes, I also medical representative daily 7 to 8 doctors meet. Yes, Sadanand Soundali, great, great Sadanand ji.
From where you are, Sadanand ji? Which city you belongs to? From which city you belongs to, Sadanand ji? Just type over here. Pune. Oh, great. Okay, great. Okay, okay, great, great, great. Okay. So I have also worked in Pune as a medical representative for 7 to 8 months. Okay. Yes. Next, I will follow your instruction. I will follow your instruction, doctor. Doctor, I will follow your instruction. Okay. So ऐसा बोलना है उन्हें आपको. Doctor, I will follow your instruction. Okay. Next. Yes. When you are meeting, when you are meeting to patient, okay, when you are meeting to patient, patient लिखना भूल गया मैं यहाँ पे. When you are meeting to patient, जब आप patient से मिलते हो, है ना. सैनी, ये देखो सैनी जी है हमारे साथ. शी इज फ्रॉम न्यू दिल्ली. वाओ, अमेजिंग. हाँ, अमेजिंग. सो व्हेन यू आर मीटिंग टू एनी पेशेंट, जब आप पेशेंट से मिलते हो, पेशेंट से जब आप मिलते हो तब आपको क्या बोलना है ना. पेशेंट से जब भी आप मिलोगे, पहली चीज क्या बोलते हैं हम पेशेंट को? टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना. टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. खुद की फिक्र करो, है ना. खुद के बारे में सोचो, है ना. खुद की फिक्र करो. गेट विल सून, जल्दी अच्छे हो जाओगे आप, है ना. ऐसे बोलते हैं. सो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? वो गेट वेल सून कब बोलते हैं हम? जब व्हेन वी आर लिविंग, है ना. जब हम पेशेंट से बात की हमने और पेशेंट को छोड़ के अभी अगर हम जा रहे हैं, सो दैट टाइम वी से गेट वेल सून. बट अगर जब हम मिले हैं उससे, तो हम क्या बोलेंगे सबसे पहले? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. ओके, पहले उससे मिलेंगे, बात करेंगे, हाय हेलो करेंगे, एंड फिर हम बोलेंगे डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा. डोंट वरी, काळजी करू नको. ओके, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. देर इज नो नीड टू वरी. ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी आप चिंता करो. देर इज नो नीड टू वरी. देर इज नो नीड टू वरी. ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसकी आप चिंता करो, जिसकी आप टेंशन लो. ओके, देर इज नो नीड टू वरी. ओके, चिंता करने का कोई कारण नहीं है. यू टेक ट्रीटमेंट प्रॉपरली एंड यू विल बी क्योर्ड. ओके, आप अच्छे से ट्रीटमेंट लो और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे. अच्छा, ठीक है. आप अच्छे से ट्रीटमेंट लो और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. ओके, यू टेक ट्रीटमेंट प्रॉपरली एंड यू विल बी क्योर्ड. बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे. हाउ डज इट फील इन द हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कैसा लगता है? हाउ डज इट फील इन हॉस्पिटल, है ना. अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसकी अगर आपको मजाक करनी है या फिर उसकी मजे लेने हैं, तो आप उसे बोल सकते हो कि कैसा लग रहा है भाई हॉस्पिटल में अभी, राइट. You are perfect. You will be perfect and fit. You will be. You are absolutely fine. Recover soon. Okay, good. Don't take tension. You will be fine soon. ये है ना, ये सेंटेंस जो है डोंट टेक टेंशन, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस है ना. ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं. डोंट टेक टेंशन, डोंट वरी, ऐसा बोलो उससे अच्छा. ये इट डजंट साउंड गुड. डोंट टेक टेंशन, है ना. ये इट साउंड नहीं करता, ठीक ठीक से साउंड नहीं करता. ओके, यस. नेक्स्ट क्या है? इट्स टेरिबल टू बी इट्स टेरिबल टू बी कन्फाइंड टू बेड हियर. यहाँ पे इधर बेड में पड़े रहना बहुत ही भयंकर है ना. इट्स टेरिबल टू बी कन्फाइंड टू बेड हियर. ये सेंटेंस लिख लीजिए, ये नया सेंटेंस है. यहाँ पे बेड पे पड़े रहना कैसा है? यहाँ पे बहुत बोरिंग होता होगा, है ना. यहाँ पे बेड पे पड़े रहना बहुत ही भयानक चीज है, बहुत ही बोरिंग चीज है, राइट. ओके, नेक्स्ट क्या है? डोंट लूज हार्ट. ओके, आप उम्मीद मत छोड़िए. ओके, डोंट लूज हार्ट. आप उम्मीद मत छोड़िए, बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा. आप उम्मीद मत छोड़िए. ओके, बिकॉज एट द टाइम एग्जाम इट्स ओके. शायद, आई डोंट नो. ओके, यस. नेक्स्ट, गेट वेल सून. गेट वेल सून तो आप सभी को पता है. विश यू स्पीडी रिकवरी. विश यू स्पीडी रिकवरी, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है. ये भी आप यूज कर सकते हैं. विश यू स्पीडी रिकवरी. नेक्स्ट, यहाँ तक सबको क्लियर है? CLR टाइप कीजिए. यहाँ तक क्लियर है गाइस? टाइप CLR इन कमेंट बॉक्स. गुड, गुड.
एक्टिव है. Few people are active in this training. Few people are really active in this training. I appreciate everybody. I appreciate you all. जो भी लोग एक्टिव है इस ट्रेनिंग में, उन सभी को मैं दिल से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, बिकॉज you all are really amazing people. Okay, you all are really amazing people. मंगला मैडम, चैत्राली जी, सदानंद जी, अंजलि, विद्या राणे, चिटनी सर, सुप्रिया, अर्सुल, है ना, ये जो लोग हैं, नितेश पवार, आरती जादव, बालाजी, अश्मी पेटकर, चित्रा मैडम, ओके, जय श्री, गुंडा, विशाल राठौड़, few people are really really amazing, right? You all are so active. Shashank Joshi, right? Don't worry, everything will be fine. Yes, thank you. Now नेक्स्ट क्या है, विश यू स्पीडी रिकवरी, ये भी एक अच्छा सेंटेंस है. नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ हम जाते हैं रेस्टोरेंट में. रेस्टोरेंट में हम कैसे बात करेंगे? ओके, हॉस्पिटल के और भी कुछ सेंटेंसेस है, बट दैट आर नॉट रिलेटेड टू अस, इसलिए वो मैंने नहीं लिए हैं. ठीक है, बट यू विल गेट ऑल दो सेंटेंसेस इन नोट्स. ओके, सो डोंट वरी. कल परसों एक दो दिन का नोट्स बाकी है. आई नो दैट कल परसों का नोट्स बाकी है, बट डोंट वरी, यू विल गेट ऑल द नोट्स. ठीक है, 1 to 30, बिकॉज वो टाइपिंग के लिए मैं किसी और के पास देता हूँ, सो दैट इज द रीजन थोड़ा लेट होता है. यस. यस, नेक्स्ट, रेस्टोरेंट. ओके, रेस्टोरेंट में हम कैसे बात करेंगे? रेस्टोरेंट में क्या क्या बात करना पड़ता है हमें? पहली बात तो हमें ऑर्डर देना पड़ता है, फिर कुछ बुलाना पड़ता है, फिर कुछ ऑर्डर हम देते हैं, फिर सूप देते हैं, वट जो भी है. सो कैसे हम बात करेंगे रेस्टोरेंट में? ओके, पहले हमने एंट्री की. ओके, कभी भी रेस्टोरेंट में आपको पता होगा, उतने तो आप अवेयर है. ओके, इंडिया में वेटर वगैरह वो वर्ड नहीं चलता है. ओके, सो हम पोलाइटली बात करते हैं इंडिया में. सो हम भैया या फिर हेलो, एक्सक्यूज मी, ऐसे करके बुलाते हैं. ओके, सो डोंट यूज वेटर वगैरह, वो अच्छा नहीं लगता. अगर इफ यू आर इन 5 स्टार और मोर देन दैट, 7 स्टार, 5 स्टार, सो देयर यू कैन यूज वेटर वर्ड. वर्ड वेटर यू कैन यूज देयर. ओके, अगर आप 5 स्टार में या 7 स्टार में हो तो. ओके, उसके नीचे अगर आप हो, सो अपना भैया वगैरह ठीक है. ओके, सो वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे रिस्पेक्टली बात करते हैं हम, बिकॉज इट्स कल्चर ऑफ आवर कंट्री. ओके, इट्स कल्चर ऑफ आवर कंट्री, इट्स कल्चर ऑफ इंडिया, कि हम किसी को भी है ना, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, किसी की पोजीशन का, किसी के जॉब का. हम उसे किसी की जॉब की वजह से, किसी की पोजीशन की वजह से हम उसे कम ज़्यादा नहीं समझते. इट्स कल्चर ऑफ आवर कंट्री एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट. ओके, वी आर प्राउड ऑफ दैट. हाउ मेनी पीपल प्राउड ऑफ दिस? How many people feel proud about our country? How many people feel proud about our culture? Okay, yes, we all are proud about it. So हम कभी वेटर वगैरह ऐसा आवाज नहीं देते. ओके, मैंने तो अभी तक मेरे लाइफ में नहीं दिया है. ओके, सो हम आवाज कैसे देते हैं? भैया आवाज देते हैं, या फिर एक्सक्यूज मी. समटाइम्स आई कॉल देम सर ऑल्सो. ओके, मैंने कई बार बोला है. ओके, बिकॉज वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट, देन ओनली वी विल गेट रिस्पेक्ट, राइट? ओके, सो रिस्पेक्ट देना एक अच्छी चीज है, वो एक अच्छा क्या बोलेंगे हम, एक अच्छा संस्कार है. एक अच्छा संस्कार है रिस्पेक्ट देना. एक एक अच्छा संस्कार है. ओके, यस. हम्म, यू कैन से काका वगैरह. गुड गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. विल यू टेक माई ऑर्डर? क्या आप मेरे ऑर्डर लेंगे? विल यू टेक माई ऑर्डर? क्या आप मेरी ऑर्डर लेंगे? विल यू टेक माई ऑर्डर? ओके. कैन यू गेट मी अ ड्रिंक? क्या आप मुझे एक ड्रिंक लाकर दे सकते हैं? कैन यू गेट मी अ ड्रिंक? कैन यू गेट मी अ ड्रिंक? ओके. आई विल टेक अ सैंडविच एंड स्मॉल केक. वो बोलेगा आपको, सर मैडम आप क्या लोगे? व्हाट यू विल हैव इन डिनर, व्हाट यू विल हैव इन लंच, वट एवर. अगर आप दोपहर को गए हो तो वो लंच कहेगा, शाम को गए हो तो वो डिनर कहेगा. सो आप क्या कहोगे? आई विल टेक सैंडविच एंड अ स्मॉल केक, है ना, मुझे एक सैंडविच और एक स्मॉल केक दो. ओके, हाँ, मुझे एक सैंडविच और एक स्मॉल केक दो. ओके, नेक्स्ट क्या है? आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ सूप नाउ. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी सूप ऑर्डर करना चाहिए. ओके, आई वुड लाइक टू ऑर्डर सूप नाउ. मुझे सूप ऑर्डर करना चाहिए. आई विल टेक कोक. कोक मतलब क्या होता है? जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, उसे कोक भी बोलते हैं बहुत से लोग, कोक, है ना.
आई विल टेक आई विल टेक अ कोक, कोक लूंगा मैं, ठीक है, मैं कोक लूंगा। आई विल हैव एन ऑरेंज जूस, आई विल हैव एन ऑरेंज जूस, मुझे ऑरेंज जूस चाहिए, ओके, आई विल हैव एन ऑरेंज जूस। जो यहाँ पे बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, कोक के जगह ऑलवेज कोई भी जूस लेना चाहिए, ओके, मैंगो जूस, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस। कोक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ओके, सो कोक नहीं लेना चाहिए कभी भी, ठीक है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, पीना है तो जूस पीना है, ओके। बट ये सेंटेंस है, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूँ जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, ओके, उनके लिए always have juice, not never go for cold drink, any cold drink, okay, yes, next, I will have an orange juice। मुझे देखो यहाँ पे आर्टिकल का यूज हुआ है, एन ऑरेंज, है ना, बिकॉज क्या है, वॉवेल्स, आई ई ओ, ए आई, ए आई, ए आई ई, क्या है वो, कौन से 5 वॉवेल्स, ए आई ई ओ यू, है ना, क्या है वो, टाइप करो यहाँ पे, हाँ, ए ई आई ओ यू, गुड, ए ई आई ओ यू, हाँ। सो देखो उसमें का ओ वाला जो यहाँ पे ये है वॉवेल है, दैट इज द रीजन यहाँ पे एन का यूज हुआ है। आई विल हैव एन ऑरेंज जूस, आई विल हैव एन ऑरेंज जूस, ओके। नेक्स्ट क्या है, पाइनएप्पल जूस विल बी फाइन, पाइनएप्पल जूस विल बी फाइन, पाइनएप्पल जूस भी मेरे लिए ठीक रहेगा, ओके, पाइनएप्पल जूस भी मैं ले सकता हूँ, आई विल हैव पाइनएप्पल जूस ऑल्सो, और पाइनएप्पल जूस ऑल्सो विल बी fine for me, okay, yes, got this all sentences, समझ में आ गए सारे sentences, okay, चलो next, can I have a glass of water, can I have glass of water, please take my order, yes, can I have glass of water, क्या मुझे एक पानी का ग्लास मिल सकता है, कैन आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे पानी का ग्लास मिल सकता है, कैन आई हैव लिटिल मोर टाइम, क्या मुझे थोड़ा और टाइम मिल सकता है। बहुत सी बार आप बैठते हो, आप वो मेनू कार्ड हाथ में लेते हो, और वेटर जो है वो आपके पास आके बोलता है, सर क्या ऑर्डर है, मैडम क्या ऑर्डर है, सर क्या ऑर्डर है, सर क्या ऑर्डर है, मैडम क्या ऑर्डर है ना, ऐसे आके वो बार बार अगर बोलता है तो उसको क्या बोलना है आपको, कैन आई हैव लिटिल मोर टाइम प्लीज, कैन आई हैव लिटिल मोर टाइम, ऐसा बोलना है उसे, कैन आई हैव लिटिल मोर टाइम, क्या मुझे थोड़ा और वक्त मिल सकता है सोचने के लिए, देखने के लिए कि मुझे कौन सी सब्जी ऑर्डर करनी है, कैन आई हैव लिटिल मोर टाइम, और फिर आप, वो बोलेगा यस श्योर श्योर, ओके, सो फिर आप टाइम ले सकते हो, राइट। आई विल टेक पालक पनीर, काजू करी, दाल तड़का एंड 4 नान्स, ओके। हाउ मेनी पीपल गॉट वाटर इन माउथ, है ना, हाउ मेनी पीपल गॉट वाटर, वाटर इन माउथ, ये सारा सुन के है ना, पालक पनीर, काजू कती, करी, दाल तड़का एंड 4 नान्स, सर सवेरे सवेरे प्लीज यार खाने की बात मत करो, राइट। ओके, हाउ मेनी पीपल गॉट स्माइली ऑन द फेस, कैन आई हैव ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यस यस, प्रीफर मैंगो जूस, गुड 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 गुड, ओके। सो दीज आर ओनली सेंटेंसेस, यस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस, ऐसा लग रहा है कि हम अभी होटल में है, राइट, हाँ, गुड, ओके। सो अभी होटल में ही, सेम होटल के ही कुछ सेंटेंसेस है। अगर होटल में, किसी होटल में आपको जाना है, लेकिन वहां पे अगर पहले से ही आप सीट बुक करना चाहते हो, है ना, पहले से ही आप अगर अपना टेबल बुक करना चाहते हो, सो आप कैसे टेबल बुक करोगे, अपना खुद का टेबल कैसे बुक करेंगे आप, है ना, कैसे बुक करेंगे, ऑन फोन, फोन पे कैसे बुक करेंगे आप, ओके, फोन पे कैसे बुक करेंगे, आपने फोन लगाया, ओके, आपका फोन लगेगा, ओके, सामने वाला इंसान बोलेगा हेलो, दिस इज हेलो, दिस इज अश्मी रेस्टोरेंट, हाउ मे आई हेल्प यू, हेलो, दिस इज अश्मी रेस्टोरेंट, हाउ मे आई हेल्प यू, आप इधर से बोलेंगे हेलो, दिस इज सागर गारवे, and I would like to reserve a table for Mr. Pandey on Friday at 7:15 p.m. मैं सागर गारवे बात कर रहा हूँ, और मैं मिस्टर पांडे के लिए फ्राइडे के दिन 7:15 पे एक टेबल बुक करना चाहता हूँ, राइट। सो वो बोलेगा ओके सर, नो प्रॉब्लम, श्योर, सो वो, आई वुड लाइक टू मेक अ रिजर्वेशन, हाँ, रिजर्वेशन, आई वुड लाइक टू रिजर्व अ टेबल, ठीक रहेगा ये, आई वुड लाइक टू रिजर्व अ टेबल फॉर माई फ्रेंड, फॉर माई बॉस, फॉर माई फैमिली, ऐसे है ना, ऐसे बोल सकते हैं आप, आई वुड लाइक टू रिजर्व टेबल फॉर माई फैमिली, आई वुड लाइक टू रिजर्व टेबल फॉर माई बॉस, आई वुड लाइक टू रिजर्व टेबल फॉर माई फ्रेंड, ओके,
आई वुड लाइक टू रिजर्व टेबल फॉर मिस्टर पांडे, मिस्टर जो भी है, जोशी, है ना, जो भी है, राठौड़, जाधव, है ना, उनके लिए मैं टेबल बुक करना चाहता हूँ। ऑन फ्राइडे बताएंगे आप, डेट बताएंगे, ठीक है। आई हैव वो क्या बोलेगा, यस सर, नो प्रॉब्लम, आई हैव रिजर्व टेबल फॉर यू, आई हैव रिजर्व टेबल फॉर यू, मैंने आपके लिए टेबल रिजर्व कर लिया है। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू, वो आपसे पूछेगा, ओके। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू, वो आपसे पूछेगा फिर से। क्या मैं आपको कुछ और हेल्प कर सकता हूँ, ओके। क्या मैं आपसे आपको कुछ और हेल्प कर सकता हूँ, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ, वो आपसे पूछेगा, ओके। आप बोलोगे नो नो, थैंक यू सो मच, इतना किया आपने वही बहुत है, ओके। नंबर ऑफ पर्सन आर इम्पोर्टेंट फॉर रिजर्वेशन, यस यस यस, ही विल आस्क दैट, वो भी सेंटेंस ऐड होगा इसमें, शायद वो सामने वाला जो इंसान है जिससे आप फोन पे बात कर रहे हो, वो पूछेगा आपसे, सर फॉर हाउ मेनी पीपल यू वांट टू रिजर्व अ टेबल, कितने लोगों के लिए आप रिजर्व करना चाहते हैं। चिटनी सर इज ऑल्सो हैविंग हिज ओन रेस्टोरेंट, दैट्स द रीजन ही इज अवेयर अबाउट दिस, ओके। सो जितने लोग हैं आप वो बोल सकते हैं फिर आप उन्हें, है ना, ओके। यस यस, सो आप कितने लोग हैं वो आपको पूछेगा, फिर आप बोल सकते हैं यस देर आर 10 पीपल, देर आर 5 पीपल, देर आर 3 पीपल, ऐसा बोल सकते हैं, देर आर 3 पीपल, देर आर 2 पीपल, देर आर 5 पीपल, ओके। गुड, नेक्स्ट, दैट विल बी ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है, हाँ बस इतना ही है, दैट विल बी ऑल एंड दैट्स ऑल, ये बोथ सेंटेंस आर डिफरेंट, हाँ, दो अलग अलग सेंटेंस है, ओके। हम दैट्स ऑल भी बोल सकते हैं, यस ओके, नो नो फाइन थैंक यू दैट्स ऑल, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, या फिर दैट विल बी ऑल, ओके, ये भी बोल सकते हैं आप, ओके। there are 10 peoples, okay. Yes, next, your table will be ready in just moment, you can wait right over there, यहाँ पे भी एक चीज सीखनी जैसी आप सभी को, you can wait over there, over there मतलब वहां पर वेट करो, ओवर हियर मतलब यहां पर वेट करो, ओके। यू कैन वेट ओवर देयर यानी आप वहां पर वेट करो, यू कैन वेट ओवर हियर यानी आप यहां पर वेट करो। देखो ओवर हियर एंड ओवर देयर का फर्क, ओके ओके। यू कैन स्टैंड ओवर देयर आप वहां पर खड़े रहो, यू कैन स्टैंड ओवर हियर आप यहां पर खड़े रहो, ओके ओके। यू कैन स्टैंड राइट देयर ऐसा भी बोल सकते हैं आप, राइट देयर मतलब वहां पर, ओके। Your table will be ready in a moment, in just a moment. You can wait right over there. आपका टेबल कुछ ही समय में रेडी होगा. You just wait. आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ओके. प्लीज डू नॉट गो एनीवेयर. हाँ, कहीं पे मत जाइए नहीं तो आपका टेबल हम किसी और को दे देंगे, है ना. कहीं पे मत जाइए नहीं तो आपका टेबल हम किसी और को दे देंगे, राइट. यस, ओके. नेक्स्ट, इफ यू वांट अ पार्सल, अगर आपको पार्सल चाहिए, सो उसके लिए कुछ चार ही सेंटेंस लिखे हैं मैंने. इफ यू वांट पार्सल फ्रॉम होटल, ओके. सो होटल को क्या बोलते हैं आपको पता है, होटल को मोटेल भी बोलते हैं, मोटेल, MOTEL, मोटेल, होटल, मोटेल, ऐसा भी बोलते हैं उसको. और भी एक दो इन भी बोलते हैं, इन, INN, इन, 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 ये वर्ड सुना है आपने, INN, कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है, इन भी बोलते हैं होटल को, इन, है ना. नहीं सुना आपने. हाँ, इन भी बोलते हैं, है ना. और रिजेंसी इन, है ना, तुषार इन, ऐसे नाम होते हैं अलग अलग, राइट. इन भी बोलते हैं, मोटेल भी बोलते हैं. मोटेल यानी जो ढाबे रहते हैं ना, ढाबे, ढाबे रहते हैं हाईवे के ऊपर, सो उसको मोटेल बोलते हैं, मोटेल, MOTEL, मोटेल, है ना. जो ढाबे रहते हैं ना उसको मोटेल बोलते हैं, ठीक है. यस, रेस्ट्रॉ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रॉ एंड होटल. कैन somebody टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रॉ एंड होटल. रेस्टोरेंट, जिसको हम रेस्टोरेंट बोलते हैं उसको रेस्ट्रॉ भी बोलते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रॉ एंड होटल. कैन somebody टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रॉ एंड होटल. किसी को पता है या फिर मैं बोलूं. ओके, चिटनी सर को पता होगा शायद. रेस्ट्रो इज विथ लॉजिंग.
आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया जितनी सर. लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दिस. आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया अभी. आई थिंक होटल इज फॉर लॉजिंग and resto is for only for food. But let's see. Today I will check it out and I will get back to you. I thought, I don't know, I may be wrong. I don't know about, I am not aware about it. I'm not aware about it. I will get back to you on the group, because you are also experienced person. मैं आपसे directly ये नहीं बोल सकता. Maybe you are right. Maybe you are right, or maybe I am wrong. Let's see. I will get back to you on the group. Okay. मुझे मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो होटल होता है, होटल, दैट इज फॉर लॉजिंग एंड बोर्डिंग. होटल में रूम्स वगैरह होते हैं, so दैट इज फॉर लॉजिंग एंड बोर्डिंग. जो रेस्ट्रो होता है, दैट इज ओनली फॉर फूड. रेस्ट्रो, रेस्टोरेंट. ओके. सो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग. बट लेट्स सी. एक बार फिर से मैं आपको क्रॉस चेक करके बताऊंगा. ठीक है. ओके. सो इफ यू वांट पार्सल एट होम, इफ यू वांट पार्सल एट होम, सो कैसे बोलोगे आप? विल इट बी फॉर हियर और टू गो? विल इट बी फॉर हियर और टू गो? ये आपको यहाँ पर चाहिए, या बोलते हैं ना वो, आप यहाँ पर खाने वाले हैं या घर लेके जाने वाले हैं? विल इट बी फॉर हियर और टू गो? आप यहाँ पे खाने वाले हो या साथ में लेके जाने हो वाले हो? ओके. यस, यहाँ पे देखो मैडम ने यहाँ पे ये डाल दिया. बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन डाल दिया. ठीक है. यस, यानी आई एम राइट, इसका मतलब आई एम राइट, राइट. जो होटल होते हैं, दैट इज फॉर लॉजिंग एंड बोर्डिंग एंड एवरीथिंग अवेलेबल ओवर देयर. लाइक वहाँ पे रहने के लिए जगह होती है, रूम्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड होटल. एंड रेस्टोरेंट इज सिंपली अ प्लेस टू हैव फूड आउटसाइड योर होम. हाँ, गुड. थैंक यू सो मच. यस, नेक्स्ट. इट विल बी फॉर हियर. इट विल बी फॉर हियर. ये नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस क्या है? इट विल बी फॉर हियर. यह ये यहाँ पे खाने के लिए है. इट विल बी फॉर हियर. ओके. इट विल बी टू गो. ये लेकर जाने के लिए है. इट विल बी टू गो. इट विल बी टू गो. ये पार्सल जो है, ये लेकर जाने के लिए. वो पार्सल आपके हाथ में रखेगा वहां का वेटर या वहां का कोई, और वो आपको बोलेगा इट विल बी फॉर, इट विल बी टू गो, और इट विल बी फॉर हियर. इट विल बी हियर यानी ये यहाँ पे खाना है और ये लेकर जाना है. इट विल बी अ पार्सल. ये क्या है? ये पार्सल है. ओके. वी हैव कम टाइम है हमारे लिए. यस, 2 स्लाइड बाकी है हमारी. गुड. इन होटल, अगर आप होटल में है, सो आप कैसे चेकआउट करेंगे, कैसे पूछेंगे, कैसे बात करेंगे? ओके. ओके. पहला क्या है? हेलो, हाय, हाउ मच आर योर रूम्स? हाउ मच आर योर रूम्स? आपका, आपके जो रूम्स है उसका किराया कितना है ना? आपके रूम का किराया कितना है? हाउ मच आर योर रूम्स? आपके रूम का किराया कितना है? हेलो, हाउ मच इज अ रूम? आपके एक रूम का किराया कितना है? हाउ मच इज अ रूम? ओके. वहां ऊपर क्या है? रूम्स है, नीचे क्या है? रूम है. ओके. कैन आई रिजर्व अ रूम? क्या मैं एक रूम रिजर्व कर सकता हूँ? क्या मैं एक रूम यहाँ पे रिजर्व करके रख सकता हूँ? आई वुड लाइक टू रिजर्व 4 AC रूम्स. आई वुड लाइक टू रिजर्व 4 AC रूम. मुझे 4 AC रूम रिजर्व करने हैं. आई वॉन्ट टू रिजर्व अ रूम फॉर माई मैनेजर. मुझे एक रूम मेरे मैनेजर के लिए रिजर्व करके रखनी है. आई वॉन्ट टू रिजर्व अ रूम फॉर माई मैनेजर. इज देयर एनी रूम अवेलेबल? क्या यहाँ पे कोई रूम अवेलेबल है? इज देयर एनी रूम अवेलेबल? क्या कोई रूम अवेलेबल है? आर देयर रूम्स अवेलेबल? एक रूम के बारे में पूछना है तो आप क्या बोलोगे? इज यूज करोगे. इज देयर एनी रूम अवेलेबल. और अगर कई सारे रूम्स के बारे में पूछना है तो आप क्या यूज करोगे? वहां पे यूज करोगे आप आर देयर रूम्स अवेलेबल. बहुत सारे रूम्स अगर आपको पूछने हैं तो यू शुड यूज आर देयर रूम्स अवेलेबल. क्या वहां पे रूम्स अवेलेबल है? यस. नेक्स्ट. होटल मैनेजर से बात करना है आपको, या फिर होटल मैनेजर आपसे बात कर रहा है, सो वो आप कैसे बात करेगा? वो आपसे कैसे बात करेगा? व्हाट डे डू यू वांट टू चेक इन सर? आप किस दिन चेक इन करने वाले हो? चेक इन चेकआउट पता होगा आपको? चेक इन चेकआउट पता होगा? बच्चों को नहीं पता होगा, उनके लिए बताता हूं मैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए. चेक इन मतलब जिस दिन आप होटल में एंट्री कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड चेक इन. ओके. जिस दिन आप वहां पे रहने जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड चेक इन. और चेकआउट मीन्स जिस दिन आप होटल छोड़ रहे हो,
दैट इज कॉल्ड चेकआउट. ओके, चेक इन एंड चेकआउट. चेक इन मतलब आप उस होटल में गए, आपने एंट्री ली, आपने वहां पे रहना शुरू किया. एंड चेकआउट मीन्स वो होटल आपने छोड़ा. ओके, सो वो मैनेजर आपसे पूछता है व्हाट डे डू यू वांट टू चेक इन, किस दिन आपको चेक इन करना है, किस दिन आपको होटल में आना है. व्हाट विल बी द चेकआउट टाइम, आपका चेकआउट टाइम क्या होगा, आपका चेक इन टाइम क्या होगा, है ना, ये भी पूछ सकता है. व्हाट विल बी द चेकआउट टाइम, सर आपका चेकआउट टाइम क्या होगा, आप कब होटल छोड़ के जाओगे. सर व्हाट विल बी द चेक इन टाइम, आपका चेक इन टाइम क्या होगा, चेक इन डेट क्या होगी, ये भी वो पूछ सकता है, राइट. विच डेट डू यू वांट टू रिजर्व, आप कौन सी डेट को रिजर्व करना चाहते हो ये रूम. विच डेट डू यू वांट टू रिजर्व, लेट मी चेक इफ is there is there a room available on that same date. लेट मी चेक, मुझे चेक करने दीजिए, लेट मी चेक कि वहां उस दिन रूम अवेलेबल है या नहीं, लेट मी चेक. ओके, लेट के सेंटेंसेस भी हम सीखने वाले हैं, है ना, लेट, लेट के भी सेंटेंसेस आप सीखेंगे. ओके, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग विथ अस, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग विथ अस, आप कितने दिन हमारे साथ रहने वाले हो. हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग विथ अस, आप कितने दिन हमारे साथ रहने वाले हो. नेक्स्ट क्या है, वुड यू लाइक अ सिंगल बेड और डबल बेड इन रूम, वुड यू लाइक सिंगल बेड और डबल बेड, आपको रूम में सिंगल बेड चाहिए या डबल बेड चाहिए, ये भी पूछता है वो. ओके, यस, yes, 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 Mahendra Singh ji, you can leave already, we have finished with our lecture. Okay, so guys, we are finished with today's lecture. Now you just have to put a message in the group how you आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, ये आपको बोलना है ग्रुप में. ओके, यहाँ पे कुछ कमेंट्स किए हैं, वो कमेंट्स में एक बार पढ़ना चाहूंगा. आरती जाधव ने यहाँ पे लिखा है, सर हमें नहीं दिख रहा, इट कांट it can't to made for parcel, how much we paid for room, on which day, on which day you are checking. आपको दिख रहा नहीं है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको, आपके नेटवर्क का इशू है आरती जी, आपके नेटवर्क का इशू होगा या फिर आपने कहीं गलत जगह पे टच किया है वहां पे, इसलिए आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा. बट डोंट वरी, यू विल गेट नोट्स. ओके, डोंट वरी. सो जस्ट गो देयर एंड टाइप इन द ग्रुप आपको आज का सेशन कैसे लगा. ओके, बाकी लोगों को भी बोलो काइंडली अटेंड द सेशन एंड enjoy this learning. Okay, is that hotel usually just a place. Okay, यहाँ पे ये लिखा है. Okay, good, good. So क्या बोल रहे हैं आप. would you like to would you like a single bed or double bed in a room. चैतन्य जी, would you like a single bed or double bed in room, आप सिंगल बेड चाहते हो या डबल बेड चाहते हो. ओके, दूसरा क्या है, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग विथ अस, आप कितने दिन हमारे साथ रहने वाले हो, है ना, आप कितने दिन हमारे साथ रहने वाले हो. विच डेट डू यू वांट टू रिजर्व, आप कौन सी डेट पे रूम होटल का रिजर्व करना चाहते हो. ओके, ये सेंटेंस है. ओके आरती जी, आई एम नॉट गेटिंग यू, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग यू, आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आई वॉन्ट टू सी 2 slides in hospital when you are meeting. So you will get don't worry, you will get slide in your group. Okay, चलो ये slide जो है मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ. ठीक है, so you will get there, don't worry. ठीक है, okay, yes. सो गाइज ये स्लाइड्स मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, डोंट वरी, आपको सारी स्लाइड वहां पे मिल जाएंगी. एंड ऑल्सो यू विल गेट रिकॉर्डिंग, नाउ यू आर गेटिंग रिकॉर्डिंग ऑन द सेम डे, आपको सेम डे रिकॉर्डिंग मिल रही है. ओके, सब लोगों ने टाइप कर दिया ग्रुप में, गुड. So wish you very happy, wish you very happy day today. Okay, enjoy your day and practice इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, ऑडियो सुनो, वीडियो देखो, 5 लाइन कम से कम पढ़ो एवरी सिंगल डे, 5 लाइन कम से कम पढ़ो, 2-3 लाइन लिखो, वीडियो बनाओ. ओके, विद इन इंग्लिश लैंग्वेज वीडियो बनाओ एंड पोस्ट इन ग्रुप. ओके, ग्रुप में एक्टिव रहो, ग्रुप में कुछ पोस्ट करो, कुछ एक्टिविटी आपने की है इंग्लिश के बारे में नहीं तो वो एक्टिविटी शेयर करो ग्रुप में, है ना, यानी बाकी के लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा. ओके, एंड बस इतना ही. थैंक यू सो मच.
सो एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, शार्प 7 बजे। अच्छे कपड़े पहन के आना है, कल हम रूम्स क्रिएट करने वाले हैं। सो बी देयर शार्प 7 o'clock। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।